السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو ٹیچ پریپ۔ جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں 50 کویسچنز سالو کر چکے ہیں آپشنز کے ساتھ۔ اگر آپ کا کنٹینٹ دیکھنا نہ ہوا ہو ابھی بھی ویڈیوز کے ذریعے، یعنی کہ چینل پہ جو اویلیبل ہے ویڈیوز، تو آپ ایٹ لیسٹ یہ کویسچن اینڈ آنسر سیشن کمپلیٹ دیکھیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں بنا ٹائم پاس کیے کہ ہمارے 50 کویسچنز ہو چکے تھے۔ اب ہم کویسچن نمبر 51 سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال ہے، زبان میں تغیرات کا رونما ہونا کیا ہے؟ زبان میں تغیرات کا رونما ہونا کیا ہے؟ اے ہے شعوری عمل ہے، بی ہے فطری عمل ہے، سی ہے تکنیکی عمل ہے، اور ڈی ہے سیاسی عمل ہے۔ زبان میں جو تغیرات آتے ہیں، یعنی کہ جو تنوع آتا، ڈفرینسیشنز آتے، تو زبان میں تغیرات کا رونما ہونا کیا کہلاتا ہے؟ یہاں پر ہم دیکھیں گے، اے آپشن ہے شعوری عمل، بی ہے فطری عمل، سی ہے تکنیکی عمل، اور ڈی ہے سیاسی عمل۔ دیکھیے ایلیمنیٹ کرنا سیکھے آپ، سیاسی عمل تو نہیں ہے، تکنیکی عمل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ٹیکنیک کا استعمال نہیں ہو رہا۔ شعوری عمل ہے کہ یہ شعوری عمل میں اور فطری عمل میں آپ لوگ تھوڑے کنفیوز ہو سکتے، مگر ہونا نہیں ہے۔ شعوری عمل جان کر ہوتا کہ یہ نہیں، بلکہ زبان میں تغیرات کا رونما ہونا فطری عمل ہے۔ تو آپشن بی صحیح جواب ہے یہاں پر 51 کا، آپشن بی۔ ٹھیک ہے، چلیے 52 کویسچن نمبر 52 یعنی کہ 52واں سوال ہے، ڈیش نظم کی وہ قسم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہو کہلاتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے 4 مصرے اور 5 مصرے والی نظم دیکھی تھی۔ اب دیکھیے سوال ہے، 6 مصرے والی زبان کی قسم نظم کی قسم کیا کہلاتی ہے؟ یعنی کہ جس میں 6 مصرے ہوں، ایسی نظم جس میں 6 مصرے ہوں۔ اے ہے مثنوی، بی ہے مخمس، سی ہے مسدس، اور ڈی ہے مربع۔ دیکھیے مربع تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور مثنوی بھی نہیں ہے۔ مخمس ہم نے دیکھے تھے ایسی نظم جس میں 5 بند ہے، یعنی کہ 5 مصرے، وہ کہلائیں گی مخمس، یعنی کہ خمس سے بنا مخمس۔ ٹھیک ہے، تو چھٹا سی ہے مسدس، تو مسدس یعنی کہ 6 والے اس کو کہتے ہیں، تو 6 والے بند کی، تو صحیح جواب ہوگا ہمارا یہاں پر مسدس۔ مسدس نظم کی وہ قسم ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، تو وہ کیا کہلاتی؟ مسدس کہلاتی۔ ٹھیک ہے، سی جواب یہاں پر صحیح ہے۔ 53واں سوال ہے، دیکھیے حمد کے لغوی معنی ہیں۔ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی کہ تعریف بیان ہو۔ ٹھیک ہے، تو حمد کے لغوی معنی کیا ہوں گے یہ دیکھیں گے ہم۔ اے ہے وحدانیت، بی ہے تعریف، سی ہے اظہار، اور ڈی ہے خیال۔ دیکھیے وحدانیت تو نہیں ہے، اظہار بھی نہیں ہے، اور خیال بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ تعریف ہے۔ حمد کے لغوی معنی ہے تعریف کے۔ بہت ہی آسان سوال ہمارا 54 کویسچن ہے، 54واں سوال، ایسی نظم جس میں کسی بادشاہ، وزیر یا شخصیت کی تعریف کی گئی ہو کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایسی نظم جس میں جو ہے کوئی بادشاہ یا وزیر یا کوئی شخصیت کی تعریف کی جاتی ہو، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اے ہے رباعی، بی ہے قصیدہ، سی ہے مرثیہ، اور ڈی ہے غزل۔ تو 54ویں سوال کا صحیح جواب ہے، دیکھیے رباعی تو نہیں رہیں گی، قصیدہ بی کہتے ہیں، 54 کا صحیح جواب ہے قصیدہ یعنی کہ بی۔ ایسی نظم جس میں کوئی شخص کے بارے میں یا کوئی شخصیت کے بارے میں، وزیر کے یا کوئی بادشاہ کے بارے میں تعریف کی جا رہی ہو، وہ قصیدہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، 55واں سوال ہے، 55 کویسچن ہمارا، استقرائی طریقے میں پہلے۔ استقرائی طریقے میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم نے 2 طریقے پڑھے ہیں، استقرائی اور استخراجی۔ تو استقرائی طریقے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے اے ہے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، بی ہے مثالیں دی جاتی ہیں، سی ہے تصویریں دکھائی جاتی ہیں، اور ڈی ہے تعارف کرایا جاتا ہے۔ کیا کرایا جاتا ہے استقرائی طریقے میں؟ جو ہے پہلے ہم ایگزامپلس کے ذریعے اصولوں کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ ایگزامپلس سے پرنسپلس کی طرف جاتے ہیں، مثالوں سے اصولوں کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے جس میں اصول رہتا ہے وہ کون سا طریقہ ہے؟ استخراجی، مگر ہم یہاں بات کر رہے ہیں استقرائی طریقے کا۔ تو استقرائی طریقے میں پہلے مثالوں سے واضح کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اصول سے آشنا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا صحیح جواب ہے مثالیں دی جاتی ہے، استقرائی طریقے میں پہلے مثالیں دی جاتی ہے۔ 56واں سوال ہے ہمارا، غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ اے ہے مطلع، بی ہے مقطع، سی ہے قافیہ، ڈی ہے ردیف۔ جی نہیں، غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے مطلع، یعنی کہ جس میں کوئی اطلاع دی جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تو غزل کا پہلا شعر یاد رکھیے مطلع کہلایا جائے گا۔
57वां सवाल है गजल के आखिरी शेर को कहते हैं, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? देखिए पहले शेर को तो हमने देख लिया मतला कहते हैं, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब बी है मख्ता, देखिए मख्ता ये आखिरी शेर से पहचानिए, मख्ता यानी कि खता होना यानी कि आखिरी शेर को से मैच हो रहा है, तो हम यहाँ पर हमारा सही जवाब है गजल के आखिरी शेर को मख्ता कहते हैं, यानी कि आखिरी यानी कि खत्म हो रहा है, खता हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 58वां सवाल है तदरीस क्या है? तदरीस क्या है 58वां सवाल में देखेंगे हम। ए ऑप्शन है तलबा को मालूमात बहम पहुंचाना, बी है तलबा को मशवरा देना, सी है तलबा को मुस्तकबिल की जिंदगी से डराना, डी है तजुर्बेकार अराकीन का तलबा को जिंदगी से मुताबिकत पैदा करने के लिए रहनुमाई करना। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? देखिए तदरीस क्या है? तलबा को मालूमात बहम पहुंचाना है, मगर सिर्फ ये है क्या? नहीं, तलबा को मशवरा देना है क्या? मशवरा भी देते हैं, मगर ये एक हमारा एस्पेक्ट हो सकता, पूरी तदरीस हो सकती क्या? नहीं हो सकती। तो हमारा सही जवाब है डी, 58 का है डी, तजुर्बेकार अराकीन का तलबा की जिंदगी से मुताबिकत पैदा करने के लिए रहनुमाई करना तदरीस कहलाता है, ठीक है। आया समझ में? अब देखिए 59वां सवाल है हमारा, अशार में इस्तेमाल होने वाले हम वजन और हम आवाज अल्फाज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अशार में इस्तेमाल होने वाले हम वजन और हम आवाज अल्फाज? ए है मतला कहलाते हैं, बी है मख्ता कहलाते हैं, सी है खाफिया कहलाते हैं और डी है रदीफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए ए है मतला को हमने पढ़े, मतला यानी कि पहला शेर, मख्ता यानी कि आखिरी शेर, सी है खाफिया कहलाता है क्या? हाँ हो सकता है। रदीफ कहलाता क्या? नहीं। अशार में इस्तेमाल होने वाले हम वजन और हम आवाज अल्फाज जो है खाफिया कहलाते हैं, ठीक है। हम खाफिया अल्फाज कहते हैं ना, तो खाफिया जो है सही जवाब है यहाँ पर। याद रखिए हम वजन और हम आवाज अल्फाज खाफिया, और गजल का पहला शेर मतला और गजल का आखिरी शेर मख्ता, ठीक है। 60वां सवाल है हमारा यहाँ पर, खाफिये के बाद बार बार इस्तेमाल होने वाले हु बहु अल्फाज कहलाते हैं। खाफिया हमने देखे, खाफिया यानी कि हम वजन और हम आवाज अल्फाज है। अब देखिए खाफिये के बाद बार बार इस्तेमाल होने वाले हु बहु अल्फाज क्या कहलाते हैं? बहुत ही आसान सवाल है। मतला मख्ता खाफिया हमने देख चुके तीनों भी, तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या बचा? डी। मतलब क्या होता? गजल का पहला शेर मख्ता क्या होता? गजल का आखिरी शेर खाफिया क्या होता? हम आवाज लफ्ज या हम वजन अल्फाज, ठीक है। तो खाफिया के बाद बार बार इस्तेमाल होने वाले हुबहू लफ्ज है रदीफ, डी इसका सही जवाब है यहाँ पर। 61वां सवाल है, देखिए तदरीस का काम किस वक्त सरंजाम दिया जाता है? तदरीस का काम किस वक्त सरंजाम दिया जाता है? यहाँ पर हम देखेंगे। ए ऑप्शन है सीखने वाला मौजूद है हो, बी ऑप्शन है सिखाने वाला मौजूद हो, सी है मुफीद मवाद मजमून मौजूद हो, और डी है ए बी सी तमाम मौजूद हो। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? देखिए तदरीसी का काम किस वक्त सर अंजाम दिया जाता है? सिर्फ सीखने वाला मौजूद हो तो होता क्या? नहीं, सिर्फ सीखने वाला मौजूद है, सिखाने वाला नहीं है, तो तदरीस होंगी क्या? नहीं, सिखाने वाला मौजूद हो, मुफीद मवाद मजमून और मौजूद हो, ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि हम डी ऑप्शन के साथ देंगे ए बी सी तमाम मौजूद हो। तदरीसी का काम किस वक्त सर अंजाम दिया जाता है? जब सीखने वाला भी मौजूद हो, सिखाने वाला भी मौजूद हो और मुफीद मवाद मजमून भी मौजूद हो, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पर एक एक करके तदरीसी महारतों का सिखाया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? एक एक करके तदरीसी महारतों का सिखाया जाना। ये देखते हैं। माइक्रो टीचिंग, बी है टीम टीचिंग, सी है पीयर टीचिंग और डी है मल्टी ग्रेड टीचिंग। देखिए हम डीएड में भी पढ़ते और दूसरे एस्पेक्ट्स में भी हम ये पढ़ते कि तदरीसी महारतें हम क्या में सीखते हैं? माइक्रो टीचिंग में सीखते हैं। तो ये एकदम सही और आसान जवाब है हमारा यहाँ पर माइक्रो टीचिंग। बिना वक्त ज़ाया करे के एक एक करके जो तदरीसी महारतों का सिखाया जाना है वो क्या कहलाएगा? माइक्रो टीचिंग कहलाएगा। अब देखिए 63वां सवाल है यहाँ पर, एक तालिब इल्म का अपने साथी तालिब इल्म को सिखाना क्या कहलाता है? देखिए एक तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म को अगर सिखा रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? दोस्त को क्या कहते हैं? पीयर या फिर फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर एक एस्पेक्ट हमने क्या देख रहे हैं? पीयर लर्निंग का देख रहे हैं या पीयर टीचिंग का देख रहे हैं। तो अगर एक दोस्त यानी कि एक तालिब इल्म साथी अपने तालिब इल्म साथी को सिखा रहा है तो वो क्या होगा? माइक्रो टीचिंग होगा क्या? नहीं, टीम टीचिंग भी नहीं होगा, मल्टीग्रेड टीचिंग भी नहीं होगा, बल्कि पीयर टीचिंग होगा। तो 63 का सही जवाब है सी, पीयर टीचिंग, यानी कि पीयर लर्निंग कहते हैं ना हम, पीयर टीचिंग सेम थिंग है।
64 क्वेश्चन है, देखिए किस तरीक़ा तदरीस में तलबा की फितरी सलाहियतों को फ़रोग़ हासिल होता है। अब तलबा की जो फितरी सलाहियतों को हमको फ़रोग़ देना है, तो कौन से तरीक़ा तदरीस में वो ज़्यादा फ़रोग़ पाता है, ये हम देखेंगे। ए है तहलीली तरीक़े में, बी है मंसूबी तरीक़े में, सी है तरकीबी तरीक़े में और डी है इस्तिक़राई तरीक़े में। तो इन चारों तरीक़े में से सबसे बेटर तरीक़ा कौन सा है? मंसूबी तरीक़ा। ठीक है, मंसूबी तरीक़े में क्या होता कि बच्चों को जो है हम जो भी बच्चों की फितरी सलाहियतें हैं उनमें फ़रोग़ पाने के लिए ज़्यादा उनको मौका मिलता। तो हमारा 20 ऑप्शन यहाँ पर सही है कि मंसूबी तरीक़ा तदरीस में तलबा की फितरी सलाहियतों को फ़रोग़ हासिल होता है। ठीक है, 65वां सवाल है, देखिए सवालात बनाते वक़्त मौल्लिम को किस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए। ए है जवाबात को पहले से रटवा लेना चाहिए, बी है सवाल में ही जवाब भी हो और सी है सवाल की ज़बान मुख्तसर और वाज़ेह हो और डी है सवाल की ज़बान मुश्किल और इबारत लंबी हो। तो देखिए हम हमेशा से भी ये बात करते हैं कि बच्चों को मुश्किल ज़बान में नहीं पढ़ाना है, ज़्यादा कंटेंट ना देते हुए कम कंटेंट में बच्चों को फ़हम देना है। ठीक है, तो जवाबात को और रटवाने की भी बात हम कभी करते नहीं और सवाल में ही जवाब हो ये हो सकता, मगर हम सही ऑप्शन बेटर ऑप्शन की तरफ जाएंगे जो है सवाल की ज़बान मुख्तसर और वाज़ेह हो। तो सही जवाब है हमारा सवालात बनाते वक्त मौल्लिम को किस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि सवाल की ज़बान जो है मुख्तसर होना चाहिए और वाज़ेह होना चाहिए, जिससे तलबा को समझ में आए कि सवाल क्या कह रहा है। 66वां सवाल है, देखिए अदब की बुनियादी अक़साम है। अदब की बुनियादी अक़साम कितनी है, हमने ये चैप्टर में देख चुके थे। अब हम देखेंगे, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी है 5। तो देखिए अदब की बुनियादी अक़साम हमने इससे पहले देखे थे और सही जवाब है 2। अदब की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। याद रखिए ये सवाल आपको पूछा जा सकता है, अदब की बुनियादी अक़साम कितनी है? बुनियादी पूछा जा रहा है, बुनियादी अक़साम 2 ही है अदब की। ठीक है, अब देखिए 66वां सवाल यानी कि 67th क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इंशा का ताल्लुक अदब की किस सन्फ़ से है? इंशा का ताल्लुक अदब की किस सन्फ़ से है? तो देखिए इंशा यानी कि हमने इससे पहले देखा था, तो वो नस्र से ही ताल्लुक रखता है। ठीक है, नज़्म से नहीं, बल्कि इंशा का ताल्लुक जो है अदब की किस सन्फ़ से है? इसका सही जवाब है नस्र से। इंशा का ताल्लुक अदब की नस्र वाली किस्म से है। ठीक है, सन्फ़ से है, सॉरी। 68 क्वेश्चन है, कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? ये देखना है हमको। ठीक है, ए है पूरी जमात को मुखातिब करके सवाल किया जाए, बी है तदरीस से नज़्म का पहला मरहला ऐलान सबक है, सी है जॉन डेवी के मुताबिक क़यास का एक उन्स अमल के 1 टन से बेहतर है, डी है जायज़े की अहमियत का नाम है, जायज़े की कीमत का नाम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है पूछ रहा है हमको। ठीक है, तो सही जवाब इसका है पूरी जमात को मुखातिब करके सवाल किया जाए। तो ये जवाब हमारा, क्योंकि नहीं कौन सा बयान दुरुस्त है नहीं है ये पूछ रहा है हमको, तो ये सवाल का जवाब सही होगा कि पूरी जमात को मुखातिब करके सवाल किया जाए। पूरी जमात को मुखातिब करके सवाल तो करते हैं मगर जवाब कोई 1 या 2 या 3 पे मुनहसर रहता। ठीक है, 69वां सवाल है, देखिए उर्दू के पहले अफसाना निगार थे। बहुत ही आसान सवाल है, उर्दू के पहले अफसाना निगार कौन थे? ए है कृष्ण चंद्र, बी है सादत हसन मंटो, सी है असमत चुगताई और डी है प्रेमचंद। तो उर्दू के सबसे पहले अफसाना निगार थे प्रेमचंद। याद रखिए उर्दू के पहले अफसाना निगार प्रेमचंद थे। अब देखिए सवाल है, इस्म की कितनी किस्में हैं? इस्म की कितनी अक़साम है हमने इससे पहले देख चुके हैं चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो की लिंक में जाकर देख सकते हैं आप लोग। इस्म की कितनी अक़साम है? 1 है क्या? नहीं। 2, सी है 3, डी है 4। तो जी हाँ, इस्म की किस्में हैं। इस्म की कितनी किस्में हैं? इस्म की किस्में जो है 2 है। इस्म की किस्में 2 है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन हमारा सही हुआ।